चलो, so everything is done from my. So once again, in 2 minutes, I'm revising the things. This is the syllabus for HMI. Okay. In this particular syllabus, we have covered this course outcome. We were having total 5 course outcome. Okay, as I told you earlier that we are having course outcome for each and every course. For each and every course, we are having course outcomes, and those course outcomes are very very important. Again, I'm telling you because you know that course outcomes are important. You need to remember these course outcome because if after the completion of the all the chapters after completion of all the chapters, you can rectify from your side only that whether I have achieved this or whether this course outcome I have achieved or not. Okay. For example, the very first one, that is identify user interface design principle. So whatever user interface design के जो principles है, वो principles आपने identify कर पाएंगे. Okay. If you will be given any product, okay, likewise if you will be given this, for example, this case, okay, so this is the AirDocs case. तो ये केस को डिजाइन करने के जो इसका जो यूजर इंटरफेस है, तो ये कैसे होना चाहिए? कैन यू आइडेंटिफाई? If you can identify the user interface design principle for any product, then it means that you have achieved this particular one. Okay. Second one, analysis of effective user-friendly interfaces. Analysis करना है. The main focus is on the analysis part. So the effective analysis of user interface. Okay. Then apply interactive design process in real world application. तो अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे कि तो किसी भी प्रोडक्ट को का जो डिजाइन प्रोसेस है, तो कोई भी जो आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर सको, सारे डिजाइन प्रोसेस को अप्लाई कर सको. और फिर उसके बाद में फिर इवेलुएट यूआई डिजाइन एंड जस्टिफाई. तो यूजर इंटरफेस का डिजाइन को एनालिसिस के बाद में इवेलुएशन है और उसको आपको जस्टिफाई करने भी आना चाहिए कि व्हाई यू हैव टेकन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरडॉप्स और एयरपॉड इन दिस शेप ओनली. ओके, why you have not taken the shape of this particular air dots in the square one. आपने इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिए? आपने इसको ओपन करने का जो मेथड है वो ऐसे ही क्यों है? ओके, यू नीड टू जस्टिफाई वेदर इफ यू हैव नॉट डिजाइन इट. आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते अभी, बट इफ यू आर द डिजाइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, then you need to justify this also. Okay, then afterward the last course outcome, create application for social and technical tasks. So for number of application, whatever you are creating, whether it is a application or whether it is a model, okay, any prototype, so you must be able to draw this particular जो भी आपका मॉडल है उसको आप जस्टिफाई कर सको, उसको प्रॉपर्ली बना सको. As I told you that you will be given the real world application, like मैंने आपको दिया होटल मैनेजमेंट सिस्टम. Okay, so you have one website of hotel management system. Okay, so in which the hotel is being managed, the orders are being managed, the customers are the customers are entertained. Okay, customers के order लिए जाते हैं, उनके order fulfill, everything is there in this particular management. Okay, तो उसका जो डिजाइन है वो कैसे होना चाहिए, उसके अंदर फ्रंट में कौन से ऑप्शन आना चाहिए, उसके नेक्स्ट स्क्रीन में कैसे ऑप्शन आना चाहिए, how your login screen should look like. Okay, how your registration form look like. Okay, so each and everything will be designed by you. Okay, तो एक HMI सब्जेक्ट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, डोंट टेक इट जस्ट मतलब ऐसे कि थियरी सब्जेक्ट है या फिर बोरिंग सब्जेक्ट है, बट दिस इज द वन सब्जेक्ट फ्रॉम विच यू कैन लर्न अ लॉट. ओके, और आप जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न द थिंग्स ऑटोमेटिकली. आई एम श्योर अबाउट इट. क्योंकि ये इससे ना आपको समझ में आएगा कि हाँ किन चीजों में क्या लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको एक ऐसी पेन बनाना है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था आईडी. अगर आपको इसके ऐसी पेन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा. तो ये सारे जो अपने टॉपिक्स हैं, हमारे सारे जितने चैप्टर्स हैं, फ्रॉम ऑल दिस चैप्टर्स आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा कि हाउ यू कैन डिजाइन दिस पर्टिकुलर पेन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये हमारा जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, इससे आपको ये सीखने मिलेगा कि how you can build this pen, how you can design this particular pen, why you have taken and why you have written the name over here also. ठीक है, आपने यहाँ पर उसका नाम यहीं पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आपने यहाँ पर थोड़ा सा रबरी मटेरियल लगाया है. ओके,
एंड यू नो अबाउट दिस ऑल्सो कि अगर यहाँ पर रबरी मटेरियल रहेगा so you can hold this pen very easily, otherwise आपकी जो फिंगर्स है it will slip down, ठीक है, तो यहाँ पर स्लिप होंगी बार बार, आपको ये चीज पता है. So after analysis you will come to know कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए. So you will learn a lot from these particular content or syllabus. Okay. So इतना ही डिस्कस करना था आपसे रिगार्डिंग द कोर्स आउटकम. ओके, एंड दीज आर दी प्री रिक्वेस्टीज. उसके बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मॉड्यूल्स वाइज देखे थे कि फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन, सेकंड इज रिगार्डिंग डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसके बाद में फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई पार्ट. ओके, और उसके बाद में फिर आपका स्क्रीन कैसे डिजाइन करना है उसके कुछ पॉइंट्स है. देन इंटरफेस डिजाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस, स्पेशली फॉर मोबाइल डिवाइसेस. देन इंटरेक्शन स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन स्टाइल्स और कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें. ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर्स विल कम यू नो सो यू विल लर्न द थिंग्स, क्या क्या कंटेंट है विल सी along with the chapters on. Okay, so now let us start with this particular first chapter, that is foundation of HMI. Okay, so actually I'm already having the slides of this particular one, but still as and when required we'll be using the pen tablet. We have already we have that particular pen tablet with us. Okay, so when required then I'll connect it. I don't have write it now. Okay, in 2 days it will be it will be delivered in 2 days. So we'll be using that also when required, when we'll be interacting with the diagram or some kind of explanation. So we'll using that also. Okay, so जहाँ तक ये चल रहा है इससे काम तो हम चलेंगे. Okay, so your HMI subject. Uh, so this is regarding the examination scheme, which you already know, but still I'm just revising it. So this is regarding internal assessment, 20 marks ka IA1, IA2, then average will be taken as a 20 marks. Then your end semester examination will be consisting of 80 marks, you know about it. Then you'll be having your term work, okay? So term work of 25 marks. Then you'll be having your oral, which is of 25 marks. Then you can just see that कि आपका 20 marks, 80 marks, 25 marks, 25 marks. So it all becomes 150 marks, okay? So you have 150 marks in your hand for HMI subject, okay? So likewise, you will be having your other subject also. So you need to take, utmost care that this maximum marks you can attain. Okay. इसमें जितने मार्क्स आप लोग अचीव कर सकते हैं, अब देखो इसमें कौन से मार्क्स आपके हाथ के हैं और कौन से मार्क्स आप लोग थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी. ओके, then these are the different modules which I've already shown you. First is the introduction, or we can say the foundation of HMI. The second one is about these are not the modules. Actually, this is according to the CBJ scheme. So we'll इसको थोड़ा हम लोग वो कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं. थोड़ा थोड़ा कुछ नाम चेंज किया इसमें एक्चुअली. So these are the 6 chapters. The textbooks or references we can see Galitz and the first 2 books, Galitz one, okay. धनंजय आर कलबंदी, तो ये बुक काफी फेमस बुक है, आपको मैंने ऐसे बताया था. और मेरे पास में आई हैव रिसीव लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑफ HMI. मुझे एक जगह से एक जगह की गूगल ड्राइव की लिंक मिली थी. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, सो आई गॉट द मटेरियल ऑफ ऑल पूरा फाइनल ईयर का सारा मुझे कंटेंट मिला. उसके अंदर उसकी नोट्स है, मटेरियल्स है. ओके, सो जैसे जैसे टाइम आएगा आप लोग को मैं शेयर करूंगा, वो सारी बुक्स भी आप लोग को शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम पे, देन यू कैन गेट इट. Okay, from there. Okay. The very first chapter is regarding the foundation of HMI. Okay, foundation of HMI. Introduction. Okay, it is the way in which the machine is presented to the human basically. Okay, आप में से काफी लोगों ने क्या, एक आध लोगों ने शायद आंसर भी किया था HMI का. Okay, what is HMI basically? So human machine interaction. Okay, so how you're going to interact with the particular machine. Okay, and I told you that anything can be a machine, anything can be a machine. So this is my watch. Okay, so this is my watch. This is my wrist watch, not a watch, this is my wrist watch. तो ये wrist watch किस मटेरियल की होना चाहिए, कितनी बड़ी होना चाहिए, कितने वेट की होना चाहिए, इसका डिस्प्ले कैसे होना चाहिए, इसके अंदर जो सुई के जो कांटे हैं, जो वॉच के जो मतलब के जो उसके नीडल्स है, तो वो नीडल्स कैसे होना चाहिए. तो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर वॉच. ओके, आई एम इंटरेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर वॉच. ओके, हाउ एम इंटरेक्टिंग, मैंने इसको लिया और लिया के मैंने इसको पहन लिया. ओके, अभी ये मेरे हाथ में आ गई, बोलो. ठीक है, अभी मेरे हाथ में आने के बाद में इसको ज्यादा मुझे
बल्कि नहीं लग रहा है, ज्यादा वेट नहीं है. ओके, एंड आई कैन इजीली सी दैट के नाउ द टाइम इज 2:20. ओके, I can easily read it. I can easily scroll the 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 button which it is having. Okay, इसका जो बटन है इसको मैं प्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ. सी, मैं ये सब हम लोग को क्यों बता रहा हूँ? दिस इज वन काइंड ऑफ मशीन. ओके, और इस मशीन को मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे यूज कर पा रहा हूँ. अच्छा, आप सोचो, एक्चुअली ये फिजिकल क्लासरूम होती तो बहुत ज्यादा मजा आता आप लोग को, बिकॉज लास्ट ईयर वी आर हैविंग आई थिंक 1.5 month विद द फिजिकल क्लासरूम. उसके बाद मुझे लॉकडाउन लगा था, ये सब्जेक्ट हम लोग ने स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आती है, कुछ केस स्टडीज है जो आप लोग को बताना है, मैं बताऊंगा आप लोग को. पर इतना है कि आप लोग उसको जरा अच्छे से सुन लो, ठीक है. बाद में आप लोग उसको रीड करें, आप लोग उसको पढ़ेंगे, उसमें से आप लोग गेट करेंगे, वो अलग बात है. बट जो लेक्चर चल रहा है उसमें से जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है. सो जो भी मशीन है, आप उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है. एनी काइंड ऑफ मशीन, ये आपका ये मेरा माउस है, ठीक है. दिस इज माई माउस, दिस इज वायरलेस माउस. ओके, अब ये वायरलेस माउस के साथ में इंटरेक्शन, बिकॉज आई एम द ह्यूमन. क्या लिखा हुआ है? इट इज द वे इन विच द मशीन इज प्रेजेंटेड टू द ह्यूमन. ठीक है, अभी मेरे सामने इस पर्टिकुलर मशीन को प्रेजेंट किया गया, ठीक है. आई थिंक ये कैमरा कवर नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने एक एक्सटर्नल कैमरा लगाया है, बिकॉज मेरा लैपटॉप का कैमरा काम नहीं करता है, इसके लिए मैंने लगाया. अभी मुझे इसको सामने दिखाने के लिए बहुत कुछ, एक काम करता हूँ, ये भी मैं ऑन करता हूँ. ओके, दोनों मैंने ऑन किया हूँ, तो आप लोग शायद इसको भी अच्छे से देख पाए. ओके, सो ये एक मेरा मशीन है, ठीक है. इस मशीन को मैं कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, कैसे इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, और कैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है. इट इज द वे इन विच द मशीन इज प्रेजेंटेड टू द ह्यूमन. तो ये मशीन ह्यूमन को कैसे प्रेजेंट कर रहा है? आई कैन पुट माई फिंगर्स ओवर हियर, आई कैन क्लिक ओवर हियर, आई कैन राइट क्लिक, आई कैन लेफ्ट क्लिक, आई कैन स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, आई कैन इजीली लिफ्ट इट. ओके, मैं इसको लिफ्ट कर सकता हूँ. I can use it from the backside also. I can switch it on, switch it off. I can change the batteries also. ठीक है, so these are all the parameters through which I am interacting with this particular mouse. ठीक है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ, इसको क्लिक कर सकता हूँ, स्क्रॉल कर सकता हूँ, पीछे से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, बैटरी निकाल सकता हूँ. These are all the interaction parameter of this particular machine. Okay, let me give one more example, that this is my mobile phone. Okay, the mobile phone which you can see, because मैं इसको अभी ले नहीं सकता हूँ. So this is my mobile phone. अब मैं mobile phone को interaction कैसे करूँगा? I will hold it like this. Okay, I will hold it in my right hand or left hand, whichever is comfortable for me. So I will hold it and then I'll use it from my thumb. Okay, or I'll use it by one hand and I'll use and operate it with the another hand. होल्ड करूंगा एक हाथ से, ऑपरेट करूंगा दूसरे हाथ से. आई कैन यूज इट इन दिस वे. So these are the interaction parameter. Okay, so all these things are the different parameters from which I am going to interact with the machine. Okay, machine can be anything. आपके घर की वॉशिंग मशीन, आप वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करते हैं? नमीरा, इंटरेक्शन दो वे, अपना टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए. ओके, अदरवाइज फिर कुछ मजा नहीं आएगा. नमीरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. ओके, आप वॉशिंग मशीन कैसे यूज करते हो मुझे बताओ. सो पहले वाटर लेवल सेट करते हैं, फिर उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं एंड फिर लास्ट में अपना क्लोथ्स एंड देन उसको ओके, वेरी स्टार्ट गुड. करते टाइमर सेट करके. टाइमर सेट करके इसको स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड. देखो, ऐसा आप लोग उसको इंटरेक्ट. अच्छा, आपने आपने तो ये सब किया, लेकिन आपको वॉशिंग पाउडर, जो भी आपका पाउडर है, वो पाउडर कहाँ पर डालेंगे आप? जो ट्रे रहेगा उसमें डालेंगे, राइट? जो पाउडर ट्रे होता है, यस सर. हेलो, जो पाउडर ट्रे है, इन दैट पर्टिकुलर पाउडर ट्रे यू विल पुट दैट पर्टिकुलर पाउडर. ठीक है, तो वॉशिंग मशीन ने एक इंटरेक्शन के लिए, आपको इंटरेक्शन के लिए एक वॉशिंग ट्रे दिया है, सॉरी एक पाउडर ट्रे दिया है, जिसके अंदर आप पाउडर डाल सकते हैं. फर्स्ट इंटरेक्शन एलिमेंट. ठीक है. सेकेंड, अगर आपको इसको ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए, या फिर आप खाली इसको मुंह से बोलेंगे वॉशिंग मशीन ऑन हो जा, वो ऑन हो जाएगी, ऐसा कुछ है. इतनी तो अभी अपने पास में हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं है.
तो हमारे पास में कुछ ना कुछ पैनल रहेगा स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, सो विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ स्विच ऑन और ऑफ करने का कुछ तो पैनल रहेगा, ठीक है। दैट इज इंट्रैक्शन एलिमेंट 2, ठीक है। ये हमारा सेकंड एलिमेंट जिससे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको उसको स्विंग पे डालना है, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है बिकॉज लास्ट टाइम वी हैड अ केस स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन। मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उससे बहुत क्लियर होगा आइडिया, ठीक है। तो उसमें एक स्विंग का बटन है, तो आप अगर कभी स्विंग करते हैं तो स्विंग के लिए आप खाली मुंह से बोलेंगे कि स्विंग स्टार्ट हो जाए तो स्विंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। आपको स्विंग के लिए कुछ तो नॉब को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, उसको स्विंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो वहां पर एक पैनल है, वहां पर एक ऑपरेटिंग पैनल है जहां से आप उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका और मशीन का दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इंटरेक्शन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द पैनल, ओके। सो आपका इंटरेक्शन एलिमेंट है। तो ऐसे और भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें वाटर लेवल देखना है, ठीक है। सो वाटर लेवल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वाटर आपको फिल करना है, तो वाटर फिल करने के लिए आपको उसको पाइप वगैरह कहीं तो अटैच करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आप जहां से इंटरेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल जहां पाइप लगाओगे, आपने अपना वाटर वाला पाइप लिया और लेके वॉशिंग मशीन में लगा दिया, तो जहां पर लगा रहे वो हम लोग मतलब वाटर का जो पाइप है जहां पे लगा रहे हैं, सो दैट इज अनदर इंटरेक्शन एलिमेंट, ओके। तो उस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन को मैं जहां जहां से इंटरेक्ट करूंगा वो सारा का सारा क्या हो जाएंगे, इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके। सो ये अभी आप लोग समझते जाएंगे एक एक करके। बस इतना है कि आपकी वॉशिंग मशीन है और मैं ह्यूमन, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन और मैं ह्यूमन, अब हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन करूंगा, वाटर लेवल देखूंगा, उसके बाद में फिर पाउडर डालूंगा, उसको मैं कपड़े डालेंगे, फिर उसको स्विंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो प्रोसेस है मेरा, जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, ओके। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, तो जो ऑन ऑफ करने का जो बटन है, अगर वॉशिंग मशीन की कंपनी ने उसको एकदम बेस में दिया रहता, यानी कि वॉशिंग मशीन के नीचे, तो आपको एवरी टाइम व्हेन यू नीड टू स्विच ऑन और स्विच इट ऑफ, ओके, सो एवरी टाइम यू नीड टू पुट योर हैंड लाइक दैट, ठीक है। आपको उसके मतलब उसके बेस के पास अपना हाथ लेकर जाना होगा और जाके स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होगा, जहां पर आपको बटन दिख भी नहीं, ठीक है। सो इज इट अ गुड डिजाइन? हाँ नमीरा, इज इट अ गुड डिजाइन? नमीरा, वॉशिंग मशीन देखने तो नहीं गए? नो सर। राइट, हाँ। अभी आप सर नहीं बोलेंगे सर। सर एक बार, नहीं ना, तो आप बोलेंगे कि एक बार मैंने बोल दी तो सर अब मुझे ही बोलेगा क्या? ठीक है, अब किसी और का नंबर है, ओके। सो मतलब फॉर अ गुड डिजाइन इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ये मैंने आपको पेन के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर ये पेन का अगर कभी जो होल्डिंग जो है, तो अगर मोटा होता, ये इतना अगर कभी नहीं होता, थोड़ा सा और मोटा होता, तो मैं क्या इसको होल्ड कर पाता? ये अगर स्क्वायर शेप का होता तो क्या मैं इसको होल्ड कर पाता? अगर ये ट्रायंगुलर शेप का होता तो क्या मैं इसको प्रॉपरली होल्ड कर पाता? और क्या मैं इसको एक अच्छा डिजाइन बोल पाता? नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ गुड डिजाइन। तो जब ये गुड डिजाइन कब हुआ, जब मैंने एनालिसिस किया, मार्केट में मैंने देखा, मार्केट में जब मैंने देखा तो आई केम टू नो अबाउट दैट के नो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग देयर पेन इन दिस सर्कुलर शेप so that you can easily hold it, okay, and they have a rubbery material over here so that I can easily hold it, okay। and फिर यहाँ से अगर कभी मैं अगर कैप वाला नहीं रखता हूँ तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो जितना मैं अपने मशीन को सिंपल रखूंगा और इजी टू इंटरैक्ट रखूंगा, तो वो उतना ज्यादा पॉपुलर होगा, और जितना ज्यादा पॉपुलर होगा वो उतना ही ज्यादा मतलब कि आपके कस्टमर को पसंद आएगा, और जितना ज्यादा कस्टमर को पसंद आएगा उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ही सेल होगा, और जितना सेल होगा उतना प्रॉफिट होगा, और जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको भी फायदा, बिकॉज कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विथ योर ग्रोथ। So every time, every designer has to think about it. Whenever the product is being designed, it should be designed with the minimal efforts, with maximum analysis, and get the maximum profits. ठीक है। तो ये जस्ट हमारा स्टार्ट था, अभी हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। So each person has different level of intelligence and experience.
because all the designer whoever are involved in the designing process, like अब मैं उतना अच्छे से सोच नहीं पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, I cannot think up to the level from which you people can think, ठीक है, जितनी लेवल पे जाके आप लोग सोच सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, उतने लेवल पे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा इंटेलिजेंस लेवल अलग है, मेरा एक्सपीरियंस कम, ओके, बट यू पीपल्स आर हैविंग next level of intelligence, you people are having good experience in this particular designing process, okay। तो उससे उससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट का डिजाइन अलग है, आपके प्रोडक्ट का डिजाइन अलग है, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस प्लेज अ लॉट इन द डिजाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, याद रहेगा, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल इन द डिजाइनिंग प्रोसेस, मेरी चीज याद रखना। HMI is the field of research. HMI is the field of research that concentrate on how to present the functionality of the system to the user. किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को यूजर को आप कैसे प्रेजेंट करो, ये आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ये पेन है, वापस बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, बिकॉज आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ एग्जाम्पल एंड आई टोल्ड यू दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ओनली यू विल बी एबल टू लर्न, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा, आप सोचेंगे सर ऐसा कैसा, ये कैसा, इतनी वाली थियरी है, ठीक है। चलो, ये आपका पेन अगेन वापस से, ठीक है, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर पेन, एंड अगर आपको बोले कि ऐसा एक पेन डिजाइन करना है, अगर डिजाइन करना है तो उसके अंदर आपको किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, इसकी फंक्शनैलिटी पे। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि आपको इजीली आप इसको स्विच ऑन कर पाए, इसको ऑफ कर पाए, ठीक है, ऑन किया ऑफ किया, ठीक है। अगर इसको मुझे लिखना है तो मैंने ऑन किया और मैंने लिखना शुरू किया, यहाँ पर मैं इजीली होल्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर कभी ये खराब हो जाए, इसकी रिफिल खत्म हो जाए, ठीक है, मुझे इसको अगर मुझे रिफिल करना है, देन आई कैन इजीली ओपन इट अप, I can easily open it up and I can change the refill. If I can easily change the refill, then ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है, ये सारी फंक्शनैलिटीज को इजीली क्या करूंगा मैं, यूज कर पाऊँ, ओके। और अगर मैं यूज कर पा रहा हूँ तो ये एक अच्छा डिजाइन है, ठीक है। सो योर HMI ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इज द फील्ड ऑफ रिसर्च that concentrate on how to present the functionality of the system to the user. यूजर को कैसे आप इसकी फंक्शनैलिटी प्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा बोलो, अगर वॉशिंग मशीन पर अगर आपके जो स्विंग का बटन है, अगर आप कहीं और रखते, बेस में रखते, अगर आप यू आर एज अ डिजाइनर, इफ यू हैव केप्ट द स्विंग बटन ऑफ द वॉशिंग मशीन इन द बेस ऑफ द वॉशिंग मशीन, देन व्हाट कुड हैव डन, ठीक है, क्या होता, आपका जो यूजर है, जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, वो स्विंग बटन को देख ही नहीं पाता, ये भाई इसने स्विंग बटन तो दिया ही नहीं है, वो ढूंढता 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 और फिर इसको नहीं मिलता, फिर कोई जानने वाला को फोन करता और उसको पूछता, तो बताता भाई मैंने बहुत चेक किया, एक दिन ऐसे ही मैं कुछ रिपेयर कर रहा था, कुछ मेरा नीचे गिर गया था, तो मैंने देखा स्विंग बटन तो नीचे, ठीक है। तो उसकी जो फंक्शनैलिटी थी वॉशिंग मशीन की, वो कस्टमर यूज कर पा रहा था, यूज नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं यूज कर पा रहा था, क्योंकि डिजाइन अच्छा नहीं था। डिजाइन क्यों नहीं अच्छा था, बिकॉज जो पैनल था, जो ऑपरेटिंग स्विंग का जो बटन था, वो टॉप पे नहीं था, वो एकदम बॉटम पे। तो इससे ये समझ में आया कि अगर कभी डिजाइन अच्छा होगा तो फंक्शनैलिटी भी यूजर को दिख के आएंगे, कस्टमर को दिख के आएंगे। इफ द कस्टमर कैन इजीली सी the functionality and the different interaction element of the machine, then your productivity of your product will get increased, okay। so ये एक रिसर्च एरिया है जिसके अंदर फंक्शनैलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, हर मशीन के फंक्शनैलिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। Huge amount of study on human psychology is required to build good interface. Human psychology is also required in order to make the good interface. Now again, I told you the example of that particular one. अच्छा बोलो, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है, अब ये भी एक तरह का मॉडल है, ठीक है, ये एक तरह का क्या बोलूंगा, मशीन तो नहीं है लेकिन एक तरह का मॉडल है, ओके। अब अगर इसको डिजाइन करने वाले ने ऐसा डिजाइन अगर नहीं किया होता और किसी ने कुछ इसको राउंड शेप का अगर कभी डिजाइन किया होता या स्क्वायर शेप का अगर डिजाइन किया होता, तो क्या ये हम लोग इसको इजीली अपने पॉकेट में रख पाते,
नहीं रख पाते। तो व्हाट उसने क्या सोचा, ह्यूमन साइकोलॉजी, देखो यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी काम करेगी। इस पर्टिकुलर पॉकेट को कहाँ रखना है, मतलब इस पर्टिकुलर वॉलेट को कहाँ रखना है, अपने पॉकेट में रखना है, ठीक है। अगर पॉकेट में रखेंगे तो इट शुड बी एज सप्रेस एज पॉसिबल, जितना दबा हुआ हो उतना अच्छा है, सो दैट वी कैन इजीली कीप इन द पॉकेट, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी है। अगर मैं सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मैं ना एकदम कैसा रखता हूँ, किस शेप का रखता हूँ, इस शेप का रखता हूँ, ठीक है। यू कैन सी द बॉक्स, ये कितना मोटा बॉक्स है, ये कितना देखो आप लोग देख सकते हैं, काफी मोटा बॉक्स है। तो इस बॉक्स के जैसा मेरा वॉलेट होना चाहिए। तो इस बॉक्स जैसे वॉलेट को मैं रख पाता अपने पॉकेट में, इस वॉलेट को मैं रख पाता अपने पॉकेट में, नहीं रख पाता। सो दिस हेयर योर ह्यूमन साइकोलॉजी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। उसको ये सोचना है कि भाई ये जो साइज का जो बॉक्स है, ये साइज का जो वॉलेट है, हम लोग इसको नहीं रख सकते। सो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, उसको उसको सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी काम करती है, ओके। देन उसके बाद में एवरी सिंगल एस्पेक्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, सच एज इंटरेस्ट, बिहेवियर, नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस। ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे पैरामीटर्स आपको कंसिडर करना पड़ेंगे while you are designing any product। समझ में आ रहा है आप लोग को ये जो चल रहा है यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम? हाँ, someone from your side, अरफात, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को? Yes, sir. ओके, ठीक है। So the last point which I discussed right now is about every single aspect needs to be considered. Every parameter you need to consider, like interest. Human का interest क्या होता है? Human का interest क्या है? उस interest के हिसाब से आपका product होना चाहिए। Behavior, then needs, what are the requirements of the user, then what are the likes, what are the dislikes, इसके बारे में हम लोग डिटेल इन ये पैरामीटर्स हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ एक दो मिनट। Sorry for the disturbance actually. Am I audible? Am I audible? Okay, okay. Thank you, and sorry for the uh, disturbance actually. ओके, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे ना। Okay, so we were talking about the last point, that was the different parameters
we need to consider while we are designing any product, any software or any product we are designing. So we need to keep all these parameters in mind, that what are the interest, behavior, needs, like, dislike, experience, and the challenges. So all these points plays an important role. अब मैं इसके लिए डीप में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आगे भी आने वाले हैं, इसके लिए मैं इसको डिटेल में नहीं रहा। ओके, सो ये स्लाइड से हम लोगों ने क्या सीखा, बिकॉज आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट for each and every slide, for each and every topic, for each and every chapter. You must think that what you have achieved. इस पर्टिकुलर स्लाइड से मैं 10 मिनट लेक्चर बैठा, 15 मिनट लेक्चर बैठा, इससे मैंने क्या अचीव किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर ये ऐसा अगर बिहेवियर आपका रहेगा, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल ऑल्सो। अभी 1 घंटा लेक्चर बैठा, उससे मैंने क्या सीखा, यू नीड टू थिंक ऑन इट। ओके, आते हैं ये स्लाइड के ऊपर, विल कवर दिस स्लाइड आल्सो। टेक्नोलॉजी में चेंज रैपिडली बट ह्यूमन चेंज स्लोली। क्या मतलब हुआ इसका, वो तो चलो वर्डिंग से हम लोग इजीली समझ लेते हैं। ह्यूमन ह्यूमन जो माइंड होता है वो आपका जो है ना, वो जिसमें जो चेंजेस आते हैं दैट इज क्वाइट स्लो एज कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी, बिकॉज इन टेक्नोलॉजी यू कैन इजीली सी। आई गॉट द मुझे एक मैसेज मिला सुबह में, एक इमेज था, एक मैसेज मिला मुझे, उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर एक साइड के अंदर 1956 का एक फोटो था और 2020 का एक फोटो था राइट साइड। 1956 वाले में एक बहुत बड़ा एक रूम के इतना एक बहुत बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट जैसा था। इट वाज अराउंड कितना 2 MB या 1 MB का कुछ तो, या 5 MB का इतना बड़ा स्टोरेज था अराउंड, इतने पूरे इतने इतने बड़े रूम के इतना। वो 1956 की टेक्नोलॉजी। और आज 2020 में एक छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड उसके हाथ में था, उंगली पर फिंगर टिप पर रखा हुआ था, एंड इट वाज अराउंड कुछ 1 TB का वो माइक्रो एसडी कार्ड। सो वी कैन जस्ट कंपेयर दी टेक्नोलॉजी हाउ इट चेंज। इन 50 सालों में इतनी चेंज हुआ कि 1 MB से लेकर 1 TB तक पहुंच के एक इतने बड़े रूम के स्टोरेज से लेकर एक इतना सा चिप या माइक्रो एसडी कार्ड तक हम लोग पहुंच गए। So the technology, change very rapidly as compared to the human mind, or human change slowly basically. And this subject aims at the, bridging the gap between the human psychology and the upcoming technology. So basically we are, we will try from this particular chapter or from this particular subject, we will try to bridge the gap between the technology and the human psychology, so that the interaction with the different machine and interaction with the different models or products will be easy for all the customers, for all the users. Okay, as saying, only good listener can be a good speaker. You have to remember this particular statement. Excuse me. So only good listener can be a good speaker. Only good listener can be a good speaker, and only a good observer can be a good designer. ये दो स्टेटमेंट आपको एकदम दिमाग में रख के चलना है। सो मतलब जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से सुनोगे तो ही यू विल बी अ गुड स्पीकर, वैसे ही इन HMI वी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ओनली अ गुड ऑब्जर्वर कैन बी अ गुड डिजाइनर। ओके, मैंने आपको अभी एक डिजाइन आपको मैंने एक टास्क दिया। ओके, Okay, I've given you one task that you have to draw all the screenshot of, I can say, student management system का एक application बनाना है, ठीक है? Not in software, कुछ Android Studio पे नहीं, कुछ कहीं पे नहीं, आपको उसके खाली screenshot बनाना है, ठीक है? So you have seen such kind of application many times, okay? Student management system in which all the information, that is marks and their details, their email ID and their addresses, each and everything will be managed. Okay, each and everything will be managed in this particular application. तो आपको उसका मैंने स्क्रीनशॉट बनाने के लिए बोला, ठीक है? तो यू हैव सीन सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन मेनी टाइम्स। ओके, आपने किसी होटल मैनेजमेंट को देखा होगा, आपने किसी हॉस्टल मैनेजमेंट को देखा होगा, आपने किसी और मैनेजमेंट, ऐसा lot of management application you have seen. But when I will say you that you have to design a screenshot, you have to draw a screenshot of a student management system, then all those things you will remind in yourself. Okay, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ मैंने उस दिन
हॉस्टल मैनेजमेंट मैंने देखा था, तो उसके अंदर उसने लॉगिन स्क्रीन ऐसे बनाया था, और उसके जो कंपोनेंट्स थे उसने अपर साइड में उसने मैनेज किया था, और नीचे उसने एक इमेज डाला था. So you have observed this thing on that day, so you will recall it and you will try to insert that particular concept in your application. तो इससे समझ में क्या आ रहा है? अगर if you have observed the things carefully, then you can easily design your application also, and you can design your product also in a very quick, because आप सबका एक्सपीरियंस लोगे और उसको अपने प्रोडक्ट में डालो. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिजाइन. ठीक है. तो एज अ डिजाइनर, बिकॉज एवरी टाइम आई विल से यू के एज अ डिजाइनर, imagine you are a designer and you have to draw this thing, draw. Imagine you are a designer, and by considering all this parameter, you have to draw this particular product. Okay. तो इस तरीके से आपको एवरी टाइम में आपको कुछ ना कुछ टास्क दूंगा. सो बीइंग अ डिजाइनर आपको ये सारी चीजें समझ. So your observer should be a very good observer. ठीक है. So you must have good observing capabilities so that you can take all those experiences, and you can take all those observing elements whatever you have observed, and you can put all those experience and your intelligence inside the product which you are developing. ठीक है. So only a good observer can be a good designer. ठीक है. हाँ, जनरेशन हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे. 2:46 हो गए हैं, हम लोग का लेक्चर टाइमिंग 2:45 तक है. सो विल टॉक अबाउट द जनरेशन. ये आपका फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन इन इंटेलिजेंट मशीन, एंड दिस इज द फ्यूचर लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑल दैट. Okay, so tomorrow we will cover this generation part. What we have done today, we have covered a very short topic. स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉर्ट ही रहेगा, बिकॉज वी कभी भी कुछ टॉपिक निकलता है तो हम लोग कहीं और चले जाते हैं, चले जाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली HMI, it is the way in which the machine is presented to the human, and we covered all this point also, like HMI is the field of research. उसके पहले का जो पॉइंट है, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस आर दी इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस हर किसी का अलग अलग होता है. सो ईच एंड एवरी वन मे हैव अ डिफरेंट डिजाइन. आपने देखा होगा अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग जो डिजाइनर होते हैं, सबका डिजाइन अलग अलग होता है, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस. कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका उतना. अब किसी ने पूरी दुनिया देखी है, उसके पास में बहुत सारे मॉडल्स उसके दिमाग में, तो उसने एक अच्छा डिजाइन बना के दिया आपको. सो इट इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट डिजाइन. ओके. Then it's a field of research in which you need to concentrate and you need to focus on the functionality of the system and you have to present it to the users. You need to work on the human psychology also, so that you can build a good design, good interface. Okay. Okay. And every single aspect need to be considered, like whatever is mentioned in front of you: interest, behavior, needs, like, dislike, experiences, and challenges. Then only a good observer can be a good designer. So these are some basic points which which for the introduction part, for the foundation of the HMI have taken out these particular topics, sorry, statement from the books. Okay. So in next lecture, we will start with the generation. We'll cover the generation part, and we'll cover this hardware, software, and operating environment. So hardware part, software part, operating environment part. Okay. Okay, so I'll stop the recording first.